So, okay, without further ado, let me jump into the. Today, I'm going to talk about Fulbright Scholar Program for 2025 cohort. I believe you all must have seen the our advertisement in the newspapers. It was announced last Sunday, and the application submission deadline is Wednesday, September 18, 2024. Okay, just quickly going through the eligibility criteria once again. Anybody with a PhD or terminal degree. There are few subjects here in Pakistan where there isn't a PhD available. So that's why we said that PhD or terminal degree in their fields. Applicants, those who are interested in applying for this program this year, they must have completed their PhD 2 years prior to applying for this program. Means that you are going to apply in 2024 right now. So by the deadline of September 18, 2024, 2 years should have been completed for your PhD studies. Okay, PhD completion. Sorry, not the studies, but the completion. I'll open the discussion, and I don't know, but I always like to have more interactive sessions and answering the questions. I always like to answer a lot of questions, whatever you want to ask, instead of going through the presentation. That's why I'm not going to have any formal presentation today. You are all uh, at the helms of your career. You have done your PhD. So you are everybody Sir, I have a of you question. is a scholar in himself or herself is a big scholar. Although I'm not a PhD, I don't get that honor. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, I am Professor Dr. Mehboob Alam from Capital University of Science and Technology, Yes, Islamabad. I understand, Dr. Mehboob. Just please, if you can raise hand, so that I can go to each answer. Otherwise, everybody will start talking into the Okay, screen. sir. It will be difficult for me to understand and answer the questions. I would prefer Okay, sir. rather if you can write a question in a chat box and then let me answer those questions. Otherwise, right now, as you can see, that I have more than 50 people attending this. If It's everybody, okay, sir. Okay, sir. even Okay. somebody starts talking on this, that will be very difficult. So I was going through the eligibility criteria quickly, that 2 years, person having been in the United States for research or other long-term educational opportunities within the last 5 years. If you have been to the United States for any research or any not necessarily the player trip your visit, but for research or for education during the last 5 years, you are ineligible to apply this year. You have to complete those 5 years requirement. Excellent command of written and spoken English, we always expect, because the language of higher education here in Pakistan is English. So we expect your English to be good, because for like our other programs, we always ask for English language proficiency test, but not from our scholars. Okay. Then there is an application which is uploaded on our website, www.uscfp.org. Please go download our application, fill it, and send it to us. This is an online application, so please don't send us anything as a hard copy or in a paper format. Okay. So I have already started receiving those questions. If I can, let me request to my team here, if I can see the questions in like on at the same time on the screen. Not only the single question, the question that are coming in an order, whatever order it is. Is there any age limit regarding acceptance? Okay, just bear it with me for a second, please. Let me.
Okay. Thank you to my team. Now I can see your questions. So first of all, I'm not going to name the person who's asking this question. I'm just going to read the questions. Okay. Sometimes people don't want their names to be displayed in public with their questions. That's fine. We understand that. So, okay, do we need the university acceptance letter at the time of submission of application? Yes, please. Yes, definitely. It is a mandatory requirement that you need to have an invitation letter from any US university. Okay, this is very important. Basically, there are two, three simple things in this program, and those all of them are very important. One is university invitation letter from a US university. It must be a confirmed invitation that some university, for example, I can say that, okay, if there is a Boston University wants to invite you to their research lab, then there must be a confirmed invitation letter from the Boston University, because most of the time students or applicants do submit that letter that, okay, if you get the Fulbright funding, then we'll be glad to host you. This is not a confirmed invitation letter. Okay, so please, the wording is also very important. Sometimes there are emails. We can accept the email, but if it is clearly written that you have been invited by that university to work in their research lab with such and such professor. Okay, so invitation letter is a mandatory requirement. So you have to submit it with the application. Completed PhD in 2017. Am I eligible? Yes, please, please. I would also request that these are very simple questions. It's self-explanatory because the requirement is for 2 years. So if you completed your PhD in 2017, yes, you are eligible. There is no maximum number of years PhD completion, but definitely a person with the age of 56, 57, 58 years, there is no age limit. He or she is technically eligible to apply, but our preference would be, as compared to the most senior professors, rather than at mid-career or early start young professors. That would be our preference, not necessarily. There will be few senior applicants or candidates also. They might get shortlisted, they might get selected as well if their application is really wonderful. But definitely, we also think about there's a person in his 50s, late 50s or middle 50s. In Pakistan, the retirement age is still 60 or 65, but maybe I think, I believe it's 60. So we have to see that there are some productive years in that applicant. Okay, we move on to the next question. My 2 years of PhD will be completed in October 24. Can I apply for this? Please don't do this. Otherwise, I'll be answering just one question related to your completion of 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. Obviously, you are not eligible to apply because your PhD will be completed in October 2024. As I always said, okay, for the standard rule, we can consider that those who have completed their PhD in 2022 or before that, only they can apply. Okay, let's get it straight and simple and move on. Okay. I'm not going to answer this question. This is the last one that I completed my PhD in 2011. Can I apply? Yes, you can. Please discuss on research proposal. The research should be focused on USA so that we can learn lessons from there and replicate here, or can it be focused on Pakistan? Most preferably, it should be focused in Pakistan. There is nothing, I don't think that, as you all know better than me, there's nothing that
there is a research going on only in US, which is not significant to Pakistan, not related to Pakistan in any way. So, but if it is related to Pakistan's problems, that would be wonderful. That will be more preferable. Okay, please try to ask most of the time, mostly try to ask the general question so that you think that other people will also benefit from it. If you have any particular specific question, that is, you can write to our scholar@uscfp.org. Okay, and we'll try to get back to you within 2 working days or 48 hours. Is there any age limit? No, there isn't any age limit for any of our programs. But definitely, as I said earlier, our preference would be people, those who will complete this program on Fulbright funding, will come back and serve Pakistan for a longer period of time. Not necessarily that they come out after this research and then they'll be retired after 2 or 3 years. Regarding acceptance letter, I have sent multiple emails to professors and instructors, but no reply. So in that case, without acceptance letter, one can still apply? No. It's a mandatory requirement that you have to have the confirmed invitation or acceptance letter from a US university. Okay. Yes, if you applied last year, you can still apply this year because this is one of the most competitive programs that we administer here in Pakistan. There'll be only we are aiming for select 12 to 15 scholars from all over Pakistan this year. So it will be a very tough competition. So, and we understand that there are always very good applicants, and all of you are very good applicants. So you apply. But still, we have to fill only 12 to 15 seats. That's a slotted for Pakistan this year. So it will again, once again, will be a very tough competition. And with our Fulbright programs, normally I share this stats with our applicants, and whenever I talk to the students as well, that there are 25 to 30% chances that those who apply for the first time, they get selected. Otherwise, people who applied for second, third, fourth time, you are still eligible to apply, even if you applied last year or previous to that as well, whatever it is. There's no limit that you're going to apply only 2 times, 3 times, 1 time, whatever. No, you can still apply. Keep pushing for it. Maybe next time your proposal will be much better written. Maybe you'll get shortlisted for the interviews, or you were shortlisted last time and there was something that you couldn't make it to the final cut, because it's still a very tough competition. So please don't get disheartened and keep applying. Yes, I've been applying since 2019, but there is no feedback regarding the application. Yes, exactly. I totally understand, because there are 3 things. One, each and every application goes to the experts in your field for the review process. Each and every application is reviewed twice, and reviewers, they score these applications. If there is a significant difference between the scores of 2 reviewers, then those few applications go for the 3rd review. So make this process more transparent and merit-based. So, and we don't ask the reviewers that why did you score this application low and the other one higher? No, it's their discretion. They are expert in their own field. So we don't ask them these reasons. That's why we can't share those reasons with you. एंड ऑनेस्टली मैं खुद अवॉइड करता हूँ ऐसी चीज़ों को. अगर मैं किसी को बताऊँ एप्लीकेशन में कि आपके ये 1, 2, 3 ये स्टेप, ये 2-3 चीज़ें कम थी, वही एप्लीकेंट नेक्स्ट टाइम कहेगा कि अब मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, मैंने तो देखे आपके हिसाब से, आपके कहने के मुताबिक ये दोनों 1, 2, 3 सारे ये तीनों स्टेप्स पूरे करके एप्लीकेशन दोबारा भर दी थी. तो मुझे नहीं पता. अभी ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ है बाय 18th of September, Wednesday 2024.
मुझे नहीं पता 400 एप्लीकेशन आएंगी, 4000 आएंगी, 200 आएंगी, 500 आएंगी, तो कंपटीशन उसी हिसाब से टफ होता चला जाएगा। What kind of specific field you are going to prefer for Fulbright Scholar Program 2025? In fact, इसमें हमारी कोई we have some specific preferences in our Fulbright Master and PhD program. Scholars में आपने देखा होगा कि हमारी फील्ड वाइज कोई प्रेफरेंसेस एज सच नहीं होती है, लेकिन ऑब्वियसली द फील्ड दैट पाकिस्तान नीड्स मोर, हमारे पास एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, इन फील्ड्स में हमें हेल्थ में, एजुकेशन में, इन फील्ड में लोग हमें चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हों। लेकिन इस प्रोग्राम की हमारी कोई, आपने नोटिस किया होगा बाकी प्रोग्राम्स में मुकाबले, वी डोंट हैव एनी priority fields. Otherwise, there are 5-6 priority fields for the masters and PhD students, but not for the scholar. Scholars जो है वो हर कोई अपनी फील्ड में जो है वो स्कॉलरली रिसर्च कर रहा है और आगे रिसर्च करने जा रहा है, जिससे इवेंचुअली पाकिस्तान को ही फायदा होगा, और नॉट ओनली पाकिस्तान, द वर्ल्ड विल बेनिफिट फ्रॉम इट। तो इसके लिए एज सच कोई प्रायोरिटी फील्ड नहीं है। There is universities, US universities are not replying to my emails. There is an option of research and teaching. Can you help providing a sample of teaching proposal? Sample of teaching proposal? No, I cannot provide that to you. क्योंकि हमारे पास भी अगर सैंपल होगा तो किसी और का लिखा हुआ होगा, तो वो how can we share it with you? How many invitation letters are required? One. Only one. One letter is required. If you have two, you can attach both of them, but definitely if you get shortlisted during the interview, they'll ask you that out of those two, which one you prefer. फिर वो हम एक ही रखेंगे, उसके साथ सिलेक्शन से लेकर फिर आगे तक उस पर चलता रहेगा। अदरवाइज रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज ओनली वन लेटर, वन इन्विटेशन लेटर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, आई एम क्विकली गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस नाउ। Does Fulbright provide feedback to the applicants about the application? No. Basic internet connection issue. Can we get recording of this session, please? I'm not sure. I'm not 100% sure. Maybe we'll have another session later. If not this month, then later before the submission deadline. But we'll have to talk about this internally in our office. Weightage of research proposal. इस पूरी एप्लीकेशन में वेटेज ही रिसर्च प्रपोजल का है, और इस एप्लीकेशन में क्या ऐसी चीज है जिसकी वेटेज होगी? अदरवाइज वी आर आस्किंग योर नेम, योर प्रोफेशन, योर एम्प्लॉयर, उन सारों को पूछ रहे हैं। सारे का सारा वेटेज ही रिसर्च प्रपोजल का है। Can we apply separately for teaching posts and separately for both posts? No, this program is for the postdoctoral research. उस research के दौरान mainly this is research focus. उस research के दौरान अगर आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप यूएस में जा रहे हैं वो आपको कोई टीचिंग असाइनमेंट देना चाह रही है टेम्परेली फॉर 1 or 2, अगर एक सेमेस्टर में एक कोर्स की, या तो वो that's up to the university, but this program is mainly research oriented. This is for the 10 to 12 months, 12 months maximum, इससे आगे नहीं जा सकता। Research oriented program है, it's research based, main focus will be on the research, और 10 months maximum 12 months, 12 months से आगे नहीं जाएगा। इसलिए जो भी आप रिसर्च प्लान करेंगे अपने होस्ट के साथ बात करेंगे तो प्लीज इस चीज को देख लीजिएगा कि वो रिसर्च ऐसी नहीं है कि वो रिसर्च ऑन गोइंग रिसर्च आप कहेंगे जी ये तो 12 मंथ में पूरी नहीं होगी, 14 में होगी, 16 में होगी। नहीं, मैक्सिमम टाइम वी कैन अलाउ अंडर द फुलब्राइट फंडिंग फॉर दिस प्रोग्राम इज 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद आपको वापस आना है। Excuse me, dear sir, can I ask some? नहीं, प्लीज राइट द क्वेश्चन।
इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत सारे लोग इस वक्त स्क्रीन पर हैं, अगर चार Only पांच छह one भी question बोलने I लगे। have sent in chat box, please. यू हैव सेंड इन द चैट बॉक्स। Yes, I have sent multiple times. Multiple times. Okay, let me see. Let me ask my team to get to your question and they'll forward it to me once again. Okay. Meanwhile, how many applications do you normally receive and what is the acceptance ratio? Acceptance ratio, I've already told you that there are going to be 12 to 15 slots that we are aiming for the next year। ये जो हमने competition announce किया है, हम 12 से 15 लोगों को select करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। और applications, अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से चले तो लास्ट ईयर तो द एप्लीकेशन वर समवेयर अराउंड 500, पता नहीं 490 थी शायद या 510 थी, दे वर समवेयर अराउंड 500। इस साल कितनी आएंगी आई कांट से दैट, वी आर होपिंग कि ज्यादा ही आएंगी इंशाल्लाह। ओके, सिंस वी आर नियरिंग द क्लोज, अगर अगर आप लोग प्लीज अपने इस पे हैंड रेज कर लें तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से ले लूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इस पे लिखे हुए में काफी सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली मिस हो रहे होंगे, आई कैन सी दैट। सर क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस हो गए हैं, आप काइंडली एक क्वेश्चन है वो आप एक अगर आपका हो अलाउ गया, एक करें। मिनट ठहर जाइएगा, एक मिनट ठहर जाइएगा, जरा होल्ड हाँ। कीजिएगा प्लीज। ओके, सो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स ऑन द स्क्रीन ताकि मैं देख सकूं, और फिर जिस जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ काइंडली वो बोलें, ठीक है ना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसी तरह अब क्योंकि ये सेशन हम कर रहे हैं तो वी हैव आई डोंट नो वेरी फ्यू मिनट्स लेफ्ट, बट एट लीस्ट मैं यासिर साहब से शुरू करता हूँ। यासिर साहब प्लीज गो अहेड, आस्क अ क्वेश्चन, काइंडली बी वेरी ब्रीफ एंड आई विल आल्सो बी वेरी ब्रीफ। आप लोग अपनी वीडियोस नहीं लाएं प्लीज, जब आप क्वेश्चन सर पूछें तो अपनी वीडियोस ऑफ सर कर दें, थैंक यू सो मच। वीडियो ऑफ कर दें अपनी, सर थैंक यू सो मच, जस्ट वीडियो ऑन नहीं वन करनी। क्वेश्चन। जी जी, क्वेश्चन कर, हाँ ओके, बताएं। जस्ट वन क्वेश्चन। Okay, the topics related to religious studies are usually encompass narrative and theoretical based methodology. So they usually do not necessarily benefit the country, but they have a very important role in the research field of religion. So does this fellowship encourage such titles and proposals if the applicant is invited and have a letter? देखें, लेटर है दैट यू कैन टेक्निकली अप्लाई फॉर दिस। बात ये है कि जब ये एप्लीकेशन रिव्यू की जाती है तो रिव्यूअर्स ये देखते हैं कि योर रिसर्च इज गोइंग टू बेनिफिट पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड टू एज वेल। अगर आपको लग रहा है कि जी आपका टॉपिक जो है वो पाकिस्तान को तो बेनिफिट नहीं करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जो बेनिफिट नहीं करता, लेकिन ये रिव्यूअर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। अगर आप रिलीजियस स्टडीज से रिलेटेड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिलीजियस स्टडीज के स्कॉलर्स के पास ही रिव्यू के लिए जाएगी। वो कितने मार्क्स देंगे, वो किस तरह इसको असेस करेंगे, पाकिस्तान Okay, को कितना फायदा होगा, ये उन पर है। ठीक है, लेट्स okay, मूव ऑन टू thank you. Yes, नेक्स्ट sir. वन जी, डॉक्टर रिफत Sir, अहमद।
जी डॉक्टर रिफत अहमद, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी sir, my question is that should that be only a US university or college, or it can be a US research institute? Like there are very famous institutes, NIH or MD Anderson. So can we get a host supervisor from there as well, or should it be just a college or university? देखें जी, ट्रेडिशनली इट इज फ्रॉम द यूएस यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि आपको एक कोर्स वहाँ पे रहना है, आपको रिसर्च करनी है, थोड़ी सी कोई यूनिवर्सिटी आपको टीचिंग असाइनमेंट भी दे सकती है, ठीक है। अदरवाइज जहाँ तक बात, क्योंकि ये फंडिंग की बात होती है, ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन होती है। देर आर सो मेनी think tanks, so many research institutions in a private sector in the US, or they can afford to call the scholar on their own expense. तो फिर उस पर फुल ब्राइट क्यों पैसे लगाए, ठीक है ना, ये भी एक चीज है। तो सर मेरा प्रेफरेबली यूनिवर्सिटी सेटिंग है, अदरवाइज टेक्निकली एलिजिबिलिटी उनकी भी बनती है, ठीक है। नाउ आई मूव ऑन टू डॉक्टर मोहम्मद, आई डोंट गेट योर फुल नेम। सर मदनी। सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर मेरी पीएचडी को 7.5 इयर्स हो गए हों, तो मैं स्टिल अर्ली स्टेज कैरियर के लिए एलिजिबल हूँ या मुझे सीनियर रिसर्चर के तौर पे अप्लाई करना होगा? नहीं, आप कर सकते हैं अर्ली के लिए। जी Thank you, डॉक्टर मोहम्मद मदनी। मोहम्मद मदनी है। जी सर, प्लीज गो अहेड। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मेरी पीएचडी जो है ना नोटिफाई हो जाएगी अभी 1 सितंबर को, लेकिन मैंने 2 ईयर सर्व किया हुआ है एज अ लेक्चरर, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए? नहीं जी, अभी ये होगी तो 2 साल के बाद। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी, एक मिनट, मुझे रेज हैंड्स तो देखने दें। जी असरा खान, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। असरा खान, आर यू स्टिल विद अस? ओके, लेट्स मूव ऑन टू डॉक्टर हफ्सा अब्बासी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो हमारे पास इनविटेशन लेटर है यूएस प्रोफेसर्स का, वो हमारी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जरूरी है या हम बाद में भी कोई इनविटेशन अगर आए तो नहीं जी, उसको अपलोड जरूरी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बहुत जरूरी लास्ट है। ईयर मैंने कहा था कि आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो हमें लास्ट ईयर ही बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बाद में करते 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 वो शॉर्ट लिस्टिंग की स्टेज तक हम आ गए, लोगों का उनका लेटर, बस मेरा लेटर आ रहा है, बस मेरी ईमेल आ रही है, तो वो इसलिए इस दफा एप्लीकेशन के साथ मैंडेटरी रखती है। और सर एक से ज्यादा प्रपोजल जमा हो सकता है? नहीं जी, एक का तो एक बंदे का एक ही होगा प्रपोजल, क्योंकि वो तो डेटाबेस लेगा नहीं ना उसको दोबारा। सही सही, थैंक यू सर। जी थैंक यू जी। डॉक्टर शरीफुल्लाह जान, प्लीज गो अहेड। जी सर, आपने बताया कि आप ये सारी एप्लीकेशंस को रिव्यूअर के पास भेजते हैं, तो बाज़ औक़ात आप इन चीज़ों को, वैसे मेरा क्वेरीज है कि उनमें कुछ प्रोफेशनल बायसेस भी हो सकती है, तो ये पाकिस्तानी स्कॉलर्स होते हैं या बाहर के, आप कैसे मैनेज करते हैं ताकि दोनों इन चीज़ों होते को हैं जी, मिनिमाइज दोनों हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी, ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन मैंने इसीलिए आपको बताया ना कि हर एप्लीकेशन 2 से 3 दफा रिव्यू होती है। अगर कोई एक बायस होगा तो उनमें से 3 में से एक होगा, तीनों के तीनों तो नहीं हो सकते। ओके सर। ठीक है, डॉक्टर तसव्वुर अली, प्लीज गो अहेड। मेरी एक रिक्वेस्ट और होगी कि जिनके क्वेश्चन हो चुके हैं, जैसे डॉक्टर रिफत का, डॉक्टर हफ्सा का, प्लीज अपना ये आप रेज्ड हैंड जो है ये खत्म कर दें, ताकि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो जाए। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या पिछले साल वाला इनविटेशन लेटर यूज कर सकते हैं जो हमें अगर पिछले वो साल मिला वैलिड था है, वो अप्लाई इसके वो रिन्यू कर देती है, वही वाली यूनिवर्सिटी रिन्यू कर देती है, तो प्लीज, क्योंकि अब तो पता नहीं ना, 1 साल पहले वो यूनिवर्सिटी आपको इनवाइट कर रही थी, अब आप जब 2025 में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी इनवाइट कर भी रही है कि नहीं कर रही, या उन्होंने किसी और को रख लिया? जी जैनब, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में कमेंट कीजिएगा कि हमारे यहाँ जैसे ये होता है कि ये तो रिसर्च पोजीशन है, बट आई वुड लाइक टू नो कि क्या कोई लाइसेंसर वगैरह के कोई प्रोसेसेस हमें फर्दर पहले होने चाहिए और साथ में हम वहाँ में प्रैक्टिस कर सकेंगे कि नहीं। ऑल्सो बेसिक स्टेप्स बता दें, जैसे मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि एप्लीकेशन आपके थ्रू जानी है और साथ में एक लेटर अटैच करना है और एक प्रपोजल अटैच करना है। थोड़ा सा ब्रीफली इन सब चीज़ों के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी, सब पहली चीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट कंसर्न, कि जी वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ,
देखिए फुल ब्राइट जो है वो पेशेंट कांटेक्ट या पेशेंट डायरेक्ट पेशेंट का आपका आपकी रिसर्च जरूर आप कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ आपका जो प्रोफेसर होगा वो शायद आपको साथ एज एन ऑब्जर्वर बिठा भी ले, लेकिन डायरेक्ट आपको पेशेंट को डील नहीं करने देगा, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि वहाँ पे डॉक्टर्स के इंश्योरेंस इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो फुल ब्राइट फंडिंग कवर नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्ट पेशेंट के साथ तो वो अलाउड नहीं होगा। सेकंड, आपने कहा कि जी लेटर का बता दें। जी एक लेटर मैंडेटरी है आपकी इनविटेशन का, कंफर्म इनविटेशन होनी चाहिए, और साथ आपकी रिसर्च प्रपोजल होनी चाहिए। अब रिसर्च प्रपोजल पे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी फील्ड है, आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर अपनी फील्ड को जानते हैं, उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूंगा। और इसके अलावा रिसर्च पेपर्स की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं? कितने पेपर्स, जैसे अभी मेरी पीएचडी को 2 साल होने को है, बल्कि हो नहीं, गए हैं। जितने जितने और होंगे 2 साल जितने होंगे उतनी आपकी एप्लीकेशन कंपेटिटिव होती जाएगी। इससे तो कोई फर्क नहीं कर, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हमारी कोई नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्योंकि मेरे पास वही रेज्ड हैंड्स आ रहे हैं। अच्छा जी, महानूर फारूक, मेरा ख्याल आपका क्वेश्चन काफी देर से है। जी महानूर फारूक, प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मेरा सलाम। मेरा क्वेश्चन स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। इज इट नेसेसरी टू बी करंटली एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, और अगर ये ज़रूरी है तो क्या ये किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन में ही होना एम्प्लॉयड ज़रूरी है? क्या किसी इंडस्ट्री में रिसर्च बेस्ड जॉब्स या फिर कंसल्टेंसी बेस्ड जॉब्स में अगर इन्वॉल्व हूँ तो क्या उस सिलसिले में भी फिर अप्लाई कर सकते हैं? तो पहला सवाल तो एम्प्लॉय स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से है, और दूसरा ये कि क्या हायर एजुकेशन और रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड हो तो ही अप्लाई कर सकते हैं? जी दोस्त, बहुत बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, आपको एम्प्लॉय होना, फुल टाइम एम्प्लॉय होना मैंडेटरी है, लाजमी है, होना चाहिए, ठीक है। सेकंड सेकंड ये है कि जी रिसर्च बेस्ड या एकेडेमिया, एकेडेमिया मोस्ट प्रेफरेबली एकेडेमिया के से, क्योंकि आपको पता है कि बाय नेशनल कमीशन है पाकिस्तान और यूएस, और हमारे काउंटर पार्ट एचईसी है। एचईसी की भी कोशिश ये होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो एकेडेमिया के लोग हैं वो जाएं, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करके वापस आएँ और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे एक तो ये कि आपकी एम्प्लॉयमेंट गारंटीड होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं पता उनकी क्या टर्म्स होती हैं। सेकंड, जी आप टेक्निकली एलिजिबल ज़रूर है, आपको मना नहीं किया जाता अप्लाई करने के लिए, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि प्रेफरेंस जो है वो एकेडेमिया को दी जाती है इस प्रोग्राम में। I hope I answered your questions. And now we move on to Dr. Kinza Yusufani's question. Please go ahead. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि हम जो है रिसर्च वहाँ जाके करेंगे, तो अगर हमारी स्टडी प्राइमरी बेस्ड है और आपने कहा कि सिग्निफिकेंस पाकिस्तान ही होना चाहिए क्योंकि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वी आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन हम यहाँ से करके जाएंगे या फिर वो ऑनलाइन डेटा कलेक्शन करेंगे, तो वो प्रोसेस कैसे होगा? ये देखें, ये मैं वही आपको बताऊं कि ये मेथडोलॉजी जो होगी आपकी, तो ये आप और आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन जो होगा, ये आप उससे तय करेंगे कि, क्योंकि अगर आपकी पाकिस्तान बेस्ड, पाकिस्तान फोकस्ड जो है वो कोई ऐसा टॉपिक है कि जिसकी रिसर्च पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी हो सकती है, या आपका बेस वर्क, पेड वर्क जिसको कहते हैं, वो अगर ये पाकिस्तान में हो सकता है, तो आपका होस्ट आपको बताएगा। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सेटल विद योर होस्ट इंस्टीट्यूशन इन द यूएस, ठीक है ना, कि वो किस तरह आपको एडवाइस करते हैं। हमारी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, थैंक यू सर। जी डॉक्टर महबूब, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर महबूब। थैंक यू सर। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग टीचिंग प्लस रिसर्च के हवाले से है कि फॉर एग्जांपल हम किसी सुपरवाइजर के पास जाते हैं, उस लैब में उनके साथ रिसर्च एक्टिविटी में भी इंगेज होते हैं और साथ में टीचिंग अपॉर्चुनिटी, तो उसके लिए सर क्या उस इन्विटेशन लेटर में ये उनसे मेंशन करवाना कि ये टीचिंग प्लस रिसर्च में इंगेज होंगे या इसकी जरूरत नहीं है सर? जी करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी ओके बात। सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।
Okay, now let's move on to Asra Khan once again. Going back to Asra Khan, are you with Thank you, us? sir, for giving me the chance again. Sorry, I announced your name as well, but maybe you were not I'm present. really sorry, sir. I had some internet It's okay, it's issues. okay. Please go ahead with your question. सर मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर स्कॉलरशिप ग्रांट होता है तो स्कॉलर जो है वो दरमियान में अगर वापस आना चाहे स्पेसिफिकली फॉर डेटा कलेक्शन तो वो आने दिया जाएगा और विल द ट्रैवल बी फंडेड? ट्रेवल विल नॉट बी फंडेड, लेकिन अगर आपका होस्ट जो है वो फंड कर सकती है यूनिवर्सिटी, तो वो कर दे। और अगर वो आपको इजाजत देता है पाकिस्तान में, क्योंकि 12 मंथ्स प्रोग्राम है, 1 महीने 2 महीने को, बीच में ये ऐसा नहीं है कि कभी कोई नहीं आया, बीच में लोग आए भी हैं अपनी डेटा कलेक्शन के लिए, बट दैट वाज मोस्टली यूनिवर्सिटी, दूसरी जो होस्ट यूनिवर्सिटी होती है वो फंड कर देती है। फुल ब्राइट नहीं फंड करता जी ड्यूरिंग द जी एनी ट्रैवल इन बिटवीन द प्रोग्राम, फुल ब्राइट नहीं फंड करता। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। Okay, then we move on to मेरे ख्याल है डॉक्टर इफत भी होगा किंजा या डॉक्टर इरसा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि प्रोफेसर लेवल का ही इनविटेशन होना जरूरी है या एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ से भी अगर इनविटेशन हो तो वो चलेगा? नहीं, टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट का लेटर हेड होगा, यूनिवर्सिटी का होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रोफेसर ही करते हैं, प्रोफेसर का नाम लिखा होता है, लेकिन इनवाइट जो है ना वो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही होती है, या उस डिपार्टमेंट का HOD कर रहा होता है, या डीन कर रहा होता है, तो वो टाइटल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो सर एक we are बीच में already अगर टाइम over है, time, but still, may I know who's छोटा सा सवाल है सर, अगर टाइम है। अच्छा अच्छा, शरीफुल्लाह साहब जी, प्लीज गो अहेड। जी सर एक तो अगर आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हमें गाइड करें कि नॉर्मली हम लेटर फॉर इनविटेशन भेजते हैं लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आता, तो आप किस तरह हम फॉलो अप कर सकते हैं, मतलब बाय कॉलिंग और बाय क्लोज फॉलो अप, हाउ देखिए, हाउ मैं इसमें वही 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 बात है शरीफुल्लाह जान साहब, मैं आपको बीइंग ए पाकिस्तानी, आई माई सेल्फ इज़ अ प्राउड पाकिस्तानी, आप लोग भी माशाल्लाह हैं, तो आपको बताऊं कि हमें ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है इस सिस्टम में रह के कि कोई काम आराम से नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही है। आप ईमेल करें, आप उनको बार बार ईमेल करें, आप उनके टाइमिंग के हिसाब से उनसे कॉल कर लें, उनसे आप पूछ लें, उनका नंबर ले लें। देखें, ये तो अब आपको थोड़ा सा पीछे भागना पड़ेगा उनसे, और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिसर्च कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है एक एक हर एक की ना एक लिमिट होती है, अगर आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी कोशिश भी करते हैं कॉल करने की, नहीं रिस्पॉन्स दे रहा, तो देन मूव ऑन, किसी और यूनिवर्सिटी से बात करें। ओके, थैंक यू सर। वकार जी, प्लीज गो अहेड। वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इस प्रोग्राम के तहत जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स है और जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की है, तो इसमें कोई प्रेफरेंस का स्कीम है कि आप पब्लिक सेक्टर को प्रेफर करते हैं या जिस तरह AGC नॉर्मली करती है अपने प्रोजेक्ट्स? जी, थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन है ये क्योंकि दिस इज अ मेरिट बेस्ड ओपन कंपटीशन, तो थोड़ा सा प्रेफर करने का मकसद ये होता है कि अगर दो एप्लीकेशन जो है, मैं आपको अगर इस तरह मिसाल दूं कि 2 एप्लीकेशन, एक पब्लिक सेक्टर से एक प्राइवेट सेक्टर से, बिल्कुल सेम वैल्यू पर आ रही हैं, सेम या तो, और अगर 19-20 का फर्क है, तो शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम फिर हम, अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी 19 पे भी है तो हम इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये मेरिट बेस्ड कंपटीशन है। इंटरव्यू में फिर तो पैनल मेंबर्स की मर्जी है ना कि क्या होगा। अच्छा, ओके। और दूसरा ये कि जो सीट्स की एलोकेशन है ना मुख्तलिफ डिसिप्लिन के हवाले से, तो ये इस तरह प्री डिटरमिनेट कोई होती है कि पॉलिटिकल साइंसेज में या सोशल साइंसेज में इतनी सीट्स होंगी या एग्रीकल्चर में इतनी? कोई कोटा नहीं है जी। अच्छा, ये इस प्रोग्राम की फुल ब्राइट कोई भी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम USCFP रन कर रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे वी डोंट हैव एनी कोटा सिस्टम, एनी कोटा जी, नॉट फॉर द जेंडर, नॉट फॉर द रीजन, नॉट फॉर द डिसिप्लिन। किसी डिसिप्लिन का, किसी एरिया का, जेंडर का, रीजन का, जेंडर का कोई कोई कोटा नहीं है।
कोई और भी कोर्स। ओवरऑल कोई लिमिट होती है कि ओवरऑल इतने हमने इस साल करने हैं? हमने 12 सीट्स कंप्लीट फिल करनी है, 12 या 15 बस। अच्छा, जी, सही, लेट्स मूव ऑन टू ठीक है, डॉक्टर फरहान अनवर ओके, खान, थैंक प्लीज। यू। Thank you very much for taking me on board. Is it कैन यू necessary? स्पीक अ लिटिल लाउडर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी अब आई है। Thank you very much for taking us on board. My question is relevant to my publication. Is it necessary to have a relevant publication relevant to the research proposal, or is it preferable? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मोस्ट प्रेफरेबल, अगर डिसिप्लिन से रिसर्च से होगी, रिसर्च प्रपोजल से, तो तभी उसका फायदा होगा। और ये आपने बहुत अच्छा किया, ये पॉइंट रेज किया, मैं इसके एक और भी बात करता चलूं कि ईच एंड एवरी एप्लीकेशन विद द रिसर्च प्रपोजल विल बी रन थ्रू द प्लेजरिज्म चेक। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। सारी एप्लीकेशनों का, प्रपोजल्स का प्लेजरिज्म चेक किया जाएगा, एक दफा नहीं, एक से ज्यादा मर्तबा किया जाएगा। तो प्लीज इस पर बी अवेयर ऑफ इट। प्लेजरिज्म, एआई चेक, चैट जीपीटी चेक, ये सारे चेक किए जाएंगे। Okay, thank you very much. ओके, सो इन द एंड आई बिलीव के बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए, बाकी कुछ रह गए होंगे। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि एक हैंड रेज है, लेकिन वो PNDS कुछ करके। जी प्लीज गो हेड अफीफा। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर साहब। मेरा सवाल ये था कि अगर हमारे जो रेफरेंस लेटर्स हैं, जो हमें 3 रेफरेंस लेटर्स अटैच करने हैं, मेरी जो सुपरवाइज़र हैं वो यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुकी हैं, तो उनके पास लेटर हेड नहीं होगा, तो इज दिस ओके कि उनका रेफरेंस दे दिया जाए उसके अंदर? देखिए लेटर हेड नहीं होगा, लेकिन हमारी फॉर्मेट आप डाउनलोड कर दें, जो जी हमारी वो ना है मेरे पास। लेटर की, जी उस पे करवा लें। उसी में करवा दें। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। ओके जी। नाउ आई हैव टू कंक्लूड दिस। आई कैन सी दैट डॉक्टर रिफत के पास कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, असरा खान के पास है, बट आई बिलीव के क्योंकि मुझे मेरी टीम में है कम्युनिकेशंस का, जो सारा से आपने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उनका नाम रुबा हुसैन का बार बार आ रहा है। मुझे बार बार इशारे किए जा रहे हैं कि जी बस ये सेशन ख़त्म करें, हम 15 मिनट्स ऊपर ले गए। तो थैंक यू वेरी मच। ये सेशन वो बता रही है जी मुझे कि यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, और तो आई Hello, होप कि sir. आप Can लोगों you के hear लिए, me? आप होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और अदरवाइज आप लोग scholar@uscfp.org पे लिखते क्वेश्चन कीजिए, हम कोशिश करेंगे विद इन 24 आवर्स। हम कोशिश करेंगे एक और सेशन, आई कांट प्रॉमिस राइट नाउ कि एक और सेशन कर सकें डेडलाइन से पहले और जाने से पहले, क्योंकि अभी मेरे से क्वेश्चन मेरा ख्याल है एक कोई पूछ रही थी, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ Hello, रही है, sir. सॉरी। Hello, sir. Can you hear me? Hello, sir. Can you hear me? कौन? आयशा बात कर रही है? जी आयशा जी। जी प्लीज गो अहेड, लास्ट Sir, क्वेश्चन, I एब्सोल्युटली लास्ट। जी sir, I want to ask to increase सर the प्लीज chances of सेकंड getting लास्ट, यासिर फारूक एक सवाल और है बस। sir, to increase the chances of getting the invitation letter, should we write an application to the professor or to the administration like HOD? नहीं, प्रोफेसर को लिखें जिसके साथ रिसर्च करनी है जी। Okay, ठीक okay. है, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।